Assalamu alaikum students. For the subject of language in education, today we are going to look at the topic role of majority and minority languages. For that purpose, you must understand the idea that is majority language and minority language. Now, what is a majority language? As the name suggests itself, that the language that is spoken, of course, in majority in an area or in a nation, in a country, that is of course called the majority language, the language that is used for the daily you can say for the day to day, on the day to day basis, for business, in schools, for everything, on national level and on social level. जिस जुबान में ज़्यादा बातचीत हो रही होती है, इंटरेक्शन हो रहा होता है, हर काम हो रहा होता है, दैट इज़ द मेजॉरिटी लैंग्वेज. और माइनॉरिटी लैंग्वेज जो है, दैट इज़ एक्चुअली द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ सम अदर कम्युनिटी, यू कैन से. जैसे कि मोस्टली इमिग्रेंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू गो टू अमेरिका, देयर इज़ अ लार्ज पाकिस्तानी कम्युनिटी ओवर देयर. सो आप लोग आपस में मे बी उर्दू का इस्तेमाल करोगे, बट on the national level, on your social level, on everything else, in your schools, at your offices, if you go to take out some food, if you go to dine somewhere, you go to buy something, you use English. So in that context, English would be the majority language and Urdu would be the minority language. And if you are Indians, of course, Hindi would be your minority language. Minority language, as the name suggests, is of course not privileged, in the sense that the majority language is. Majority language is privileged. It has more status, it has more, you can say it has more importance than other minority languages spoken in an area. For that purpose, I have collected these notes and I have explained majority and minority languages in detail and their role and everything. I have also put in headings. I've picked these up from different places. So it is a very good document, because you would not be able to find such direct, or you can say to the point, material on this topic, because this subject I told you earlier is going to be based on case studies. So there are a lot of case studies on this topic, like for example, in China, what is the role of majority and minority language in China, what is the status of the minority languages in China, or Siberia, or America, Pakistan. So there are a lot of case studies which people have done research at some place, at some level, at some national level, कि यहाँ पर कैसे क्या रोल है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी लैंग्वेज का. तो उससे ही आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है. अदर देन दैट कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत चीज़ नहीं होगी, बट दिस डॉक्यूमेंट इज़, जो मैंने आपके लिए कलेक्ट किया है, इसमें आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा. सो डू रीड इट आउट. अदर देन दैट, अच्छा, जो मेजॉरिटी लैंग्वेज है, ऑफ कोर्स उसकी मेंटेनेंस का इतना प्रॉब्लम नहीं होता. मेंटेनेंस से मुराद ये है कि लैंग्वेज की देखभाल, उसकी नशोनुमा, इट्स ग्रोथ, इट्स एवोल्यूशन, उसका आगे बढ़ना, ठीक है, या उसका कायम रहना सही तरह से. तो मेजॉरिटी लैंग्वेज ऑफ कोर्स इज लुकिंग आफ्टर इटसेल्फ, वो खुद ही अपना ख्याल रख रही है, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज मेजॉरिटी. सो there is that. But the minority language has to maintain itself. How does it maintain itself? Of course, the feeling of oneness. जैसे आप अमेरिका में हैं फॉर एग्जांपल, एंड आपका जो अपनी कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ जो कल्चर मैच करता है, जो आप लोगों के एक दूसरे के साथ सेंटिमेंट्स हैं, आपके जो लव फॉर योर नेशन है एक दूसरे के लिए, जो वो ऑफ कोर्स मैच करता है, वो चीज़ आपके अंदर सॉलिडेरिटी क्रिएट करता है. एंड दैट इज़ व्हेन, जब आप अपनी कम्युनिटी के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करते हो, यू ट्राई टू हैव पार्टीज विद देम, यू ट्राई टू हैव सम ऑफ योर ओन गैदरिंग्स जिसमें सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी हो, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात, शादी ब्याह पे जाना. फिर आपकी ये होती है कि इंटर कास्ट मैरिजेस करना, कि आप पाकिस्तानी ही फैमिली से ही वहाँ पर मैरिज करें, आपका जो रिश्तेदारी है वो उनके साथ ही बने. सो दैट, इस तरह से आप कोशिश करते हो एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ आपकी लैंग्वेज एक माइनॉरिटी लैंग्वेज बन चुकी है, यू ट्राई टू मेंटेन इट on that level. Other things which can be done to maintain a minority language, and which are being done by big nations and countries, is that they are, for example, in Canada,
they have started teaching Punjabi as a subject at a university level. So Punjabi, of course, is a minority language over there in Canada, English being the majority one. But they have created spaces and they have created tolerance for minority languages at a university level, academic level, higher academic level पे. तो जब उसको एक प्रॉपर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाने लगा है ऑन यूनिवर्सिटी लेवल, हायर स्टडीज लेवल, तो ऑफ कोर्स दैट इज व्हेन उसकी मेंटेनेंस और उसकी ग्रोथ पे नशो नुमा होगी, एंड इट वुड प्रॉस्पर. तो वो मेंटेन्ड रहेगी, ख़त्म नहीं होगी वहाँ से. सो सम नेशंस डू दैट, दे गिव टॉलरेंस टू द अदर माइनॉरिटी लैंग्वेजेस, बट सम नेशंस आर अ लिटिल बिट staunch and a little bit conservative when it comes to minority language. Why? Because minority language is actually challenging the hegemony and the control and the privilege of their majority language. तो वो थोड़ा सा threaten हो जाती है majority language और वहाँ के लोग. That is why some nations do not allow the minority languages to grow up and to be maintained. And at some places, in some cases even, some languages, minority languages have been pushed down by the nation so that वो challenge ही ना कर सके उनकी लैंग्वेज को. ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज रहे हैं पास्ट में भी, अभी भी होते हैं, बट ऑन द होल टॉलरेंस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, एंड minority languages are getting some space and tolerance and place in the academic circle as well. ठीक है, तो वो उसकी मेंटेनेंस के लिए होते हैं. यहाँ पर आपके पास हेडिंग्स मौजूद हैं, जैसे कि नेसेसिटी और इम्पोर्टेंस क्या है उसकी मेंटेनेंस की. ऑफ कोर्स आप एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ आप एक छोटी सी कम्युनिटी हैं, तो अपनी कम्युनिटी को एक रखने के लिए आप अपनी माइनॉरिटी लैंग्वेज का भी ख्याल रखते हैं. हाउ टू मेंटेन, इसमें मैंने आपको बताया है जो चीज़ें, लेकिन आप कोशिश करें कि इसमें भी इसको रीड आउट करें, इसमें से मज़ीद पॉइंट्स निकालें. ठीक है, यहाँ पर जैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिल सकती है. इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है जो नेशन देता है किसी माइनॉरिटी लैंग्वेज को, जैसे अमेरिका फ़र्ज़ करें दे उर्दू को, या कनाडा जैसे दे रहा है पंजाबी को, कि एजुकेशन में वो यूज़ करें, बाइलिंगुअल एजुकेशन का वो कोशिश करें. कुछ ऐसे स्कूल्स हों, जैसे कि इंग्लैंड में उर्दू स्कूल्स हैं, तो ज़ाहिर है उनको कंट्री ने, जो गवर्नमेंट है उसने सपोर्ट किया हुआ है, तो वहाँ पर अब मुझे नहीं पता, बट इन द पास्ट आई केम टू नो अबाउट सम उर्दू स्कूल्स एज वेल. तो वो ज़ाहिर है कंट्री ने उनको किया हुआ है अलाउ कि वो वहाँ पर उर्दू स्कूल्स चलाएं. फिर सपोर्ट बाय द लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, द राइट टू यूज़ द लैंग्वेज इन कोर्ट. ठीक है, वहाँ पर आप यूज़ कर सकें. द यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जैसे कि मस्जिद में है, मंदिर में है, इस तरह की चीज़ों में, और टीवी प्रोग्राम्स हैं, रेडियोज़ हैं, इस तरह की चीज़ें. ठीक है, वैसे यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप के आगे एग्जांपल्स बड़ी गलत दी हुई हैं, सो बट यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स प्लस दीज थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल नहीं. ठीक है, सो इसको ठीक कर लीजिएगा. द सपोर्ट ऑफ द लैंग्वेज पॉलिसी जो है वो किस तरह से सपोर्ट कर सकती है एक माइनॉरिटी लैंग्वेज को. एजुकेशन का क्या इफेक्ट होता है माइनॉरिटी लैंग्वेज, मैंने आपको बताया है कि वो जब हायर लेवल पे या उस पर यूज़ होती है तो उसको बेहतर चांस मिलता है मेंटेन करने का. बाइलिंगुअल एजुकेशन का क्या इफेक्ट होता है ये ज़रूर पढ़िएगा माइनॉरिटी लैंग्वेज को मेंटेन रखने में. ठीक है, इसके अंदर कुछ काम की बातें, ये सारा आपका डॉक्यूमेंट है, इट्स नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट वन. ठीक है, तो इसको रीड आउट करें, अपने नोट्स भी बनाएं, कुछ केस स्टडीज़ प्लीज़, इंटरनेट पे बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं, उनको रीड आउट करें. ठीक है, एक दो केस स्टडीज़ भी अगर आप रीड आउट करते हैं ना, तो आप उसको अपने क्वेश्चन के आंसर में ऐड कर सकते हैं. एंड आई वुड लव टू हैव सम केस स्टडी रेफरेंसेस कि आपने पढ़ी होंगी, तो आप ज़्यादा अच्छा इसके ऊपर ज़्यादा अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं. You can have good points with you when you answer this question. So this subject is not that much lengthy, हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, बस एक दो या तीन कुछ टॉपिक्स रह गए. तो केस स्टडीज़ जो है उनको प्लीज़ ऐड कीजिए, क्योंकि वो आंसर्स में आपको चाहिए होंगी. सो दैट इज़ ऑल.